हेलो एंड वेलकम टू मिनीहोर आईएएस। सो जैसा आप सबको पता है प्रीलिम्स 2023 ओवर हो चुका है और पेपर की बात करें तो पैटर्न काफ़ी चेंज था और डिफिकल्टी लेवल भी कुछ ज़्यादा ही थी, राइट। कुछ लोगों का इसमें क्लियर हो गया जिनके लिए डिफिकल्टी लेवल उतनी नहीं थी, बट कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए। सो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो लोग 2024 में अपियर करने वाले हैं। This video is very important for the freshers also and for the old aspirant also, right? जो लोगों का प्रीलिम्स 2023 क्लियर हो चुका है वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, डीएफ फॉर्म आ चुका है और सभी लोग भर चुके होंगे भी, राइट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के प्रीलिम्स के लिए, साथ में कुछ एस्पेक्ट्स हम देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से कि क्या होना चाहिए जिससे आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। यस, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल टास्क, राइट। कई लोगों ने ऐसा किया है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर हुआ है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल, एंड आल्सो दे गॉट अ ब्यूटीफुल रैंक, राइट। सो व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी फॉर 2024 प्रीलिम्स, राइट। 2023 के प्रीलिम्स में कैसा पेपर था, क्या लेवल था, किस तरह उसका फॉर्मेट था, बोथ फॉर जीएस 1 एंड जीएस 2 पेपर, सीसेट पेपर, आपको उसको एनालाइज करके तभी आगे बढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके साथ ही क्या क्या सोर्सेस आपको फॉलो करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस सोर्स को आपको किस तरह पढ़ना है, राइट। व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी दैट सोर्सेस, राइट। what should be approach for the CSAT also, we will talk about this all in video, right. So let us talk about the an overview of the prelims. So as you all know, prelims paper consists of two paper, right. GS paper 1, which comprises basically history, geography, polity, environment, economics, you know, it comprises a huge diversity, right. And then CSAT, that is paper number 2. Now if we talk about GS paper 1, it consists of 100 question, as you all know, right. And each question carries 2 mark. And if we look at the cutoff past, I think few years, for 5 years let's say, it was 80 to 95, right. I have taken a range quite long, but it is good, right. It is 80 to 95. If you belong to this category, right, that you can achieve 80 to 95 in GS paper 1, then you will be qualified for the mains examination. CSAT 23, if you have looked at that, then you will know that CSAT 23 was a tough paper, right. Most of the engineering student, even IITian, they do not able to crack the CSAT. That's why they disqualify, right. So it comprises 80 question, right, and each question carries 2.45 mark each, right. But you have to obtain only 66 mark or 67 mark, that is qualifying in nature, right. Out of 200 you have to obtain what, 66 mark. And if you able to obtain 66 mark, then GS paper 1 copy will check, and then merit will be decided, right. Not merit, but who qualify for the mains examination. So this is an overview. GS paper 1 comprises 100 question, each question carries 2 marks. General cutoff 80 to 95, and CSAT paper consisting of 80 questions, 2.5 mark, and its qualifying mark is 66, right. So this is in a general overview of the prelims examination. Now let us talk about the basic sources which you need to understand also and which you need to study, right. We will talk about the books also and how should be your approach to study that particular book, right. Now, as you all know, we will talk about first for the GS paper 1, that is General Studies paper 1, right? Its sources are written here, as you all know. History. For the history, first of all, what you should do, you have to read NCERT, right? First, for the 6th class, 7th class, and 8th class, right? All the 3 books you must to read. And you know, उसमें आपको फोकस क्या होना चाहिए, जो उसमें की टर्म्स होते हैं, राइट। उसका मीनिंग्स अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में कई बार पूछ चुका है, राइट। तो जो 6th 7th और 8th क्लास में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसकी मीनिंग को आपको ध्यान में रखकर चलना है, और जितने भी मीनिंग आपको पढ़ते समय आए उसको एक सेपरेट जगह आपको नोट कर लेना, राइट। यू शुड टू नोट डाउन ऑल द टर्म्स एंड द मीनिंग्स आल्सो, राइट, बिकॉज इफ यू एनालाइज पास्ट ईयर पेपर्स, यूपीएससी हैज आस्क्ड वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कंटेक्स्ट, राइट। कि वो क्या कर देंगे कि एक टर्म दे देंगे और उसका मीनिंग आपको पूछ लेंगे। देन यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी ऑफ 12th क्लास, राइट। As you all know, 12th class NCERT divided into 3 themes, and you have to read all the themes, because
इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स आल्सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, राइट। और उसमें भी कुछ आपको जो है मिल जाएंगे की टर्म्स जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुके हैं। उसमें बॉक्स दिया रहता है, वो की टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर आप 6, 7 और 12 की जो न्यू एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी की भी मैं बात करूंगा अभी पर, बट जो न्यू एनसीईआरटी उसको समझिए। उसमें जो की टर्म है उसको तो आपको जरूर नोट डाउन करके चलना है, एक सेपरेट शीट्स बना लेना और उसमें नोट डाउन करते हुए उसका मीनिंग आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है। Now let us talk about the old NCERT. Old NCERT is also very important, right? You cannot ignore this. So old NCERT for the ancient India, you have to read R.S. Sharma. That is very good book. और मैंने इसका रिव्यू भी लिया है जिसमें काफी बच्चों ने देखा भी है, काफी बच्चों ने अपनी जो रिएक्शन है वो भी दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। देन फॉर द मेडिकल हिस्ट्री सतीश चंद्रा एंड फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी, राइट। ये आपको अवॉइड करनी ही नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है। जितना भी सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम आपको 4 रीडिंग करनी ही करनी है। अगर आपको प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो जितना भी सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ 4 रीडिंग करनी ही करनी है। साथ में जो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि की टर्म्स को आपको नोट करते हुए एक सेपरेट सीट में चलना है, उस की टर्म को आपको नोट करते हुए और उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। तो हिस्ट्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए हम भी बात कर लेते हैं पर देखिए मेंस में क्या होता है, मेंस में एक जनरल क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट। लेट सपोज हम पूछ लेते हैं, या सॉरी यूपीएससी पूछ लेगा विलियम बेंटिक के बारे में, उनका क्या योगदान था इन द रिफॉर्मेशन, राइट। उसके बाद में जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चला उसमें किन किन गवर्नर जनरल का या वायसराय का जो है योगदान है, राइट। या फिर कॉर्नवालिस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंजेस है उसके बारे में पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप ये सब पढ़ लेंगे एंड ऑल्सो स्पेक्ट्रम हियर, राइट। तो जब आप ये सब आसानी से पढ़ लेंगे, राइट, और बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करके पढ़ लेंगे, और अगर 4 रीडिंग आप कर लेते हैं, आई नो हिस्ट्री हैज अ वास्ट सिलेबस, राइट। सो आपको ज्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इन चारों को अगर आप पढ़ लेंगे, एक जनरल ओवरव्यू बना लीजिए कि एंशियंट टू मॉडर्न एंड ऑल्सो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस आए, तो आप आसानी से मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आंसर राइटिंग में, आपको प्रैक्टिस करना होगा। पीवाईक्यूज आप नेट से डाउनलोड करिए और उसको अपने आप लिखने की कोशिश करिए और लिखिए। यही एक तरीका है मेंस के लिए, बाकी कोई अलग से कह सकते हैं बुक्स उसके लिए रिफर नहीं की जाती, राइट। यही आप पढ़िए, बस आपको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको वहां पर लिखना होगा, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ज्योग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द प्रीलिम्स, राइट, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट कोइंसाइड करता है आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। सो आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी एट लीस्ट अगर मैं बताऊं तो 20 क्वेश्चन मानकर चलिए, दैट इज गुड, राइट। 22 जा 40 नंबर्स, राइट। सो ज्योग्राफी में आपको ज्यादा तो नहीं पढ़ने को बोलूंगा मैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी दोनों, ठीक है, फिजिकल एंड आई थिंक इट्स वाज अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी, एंड 12th क्लास की दोनों। इसके साथ आपको मैपिंग ऑफ इंडियन वर्ल्ड करना। अब मैपिंग किस तरह करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। आपको फिजिकल फीचर्स जैसे रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के रिवर्स, साथ में लेक्स, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको आपको मार्क करके हुए चलना है। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मैपिंग सही से कर लिया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि मैपिंग आपको कैसे करना है। लेट्स सपोज हमने ले लिया एक नॉर्थ अमेरिका का, राइट। नॉर्थ अमेरिका का मैंने एक सीट बना लिया, राइट, मैंने एक सीट बना लिया। अब उसमें जितने भी माउंटेनस रीजन है, राइट, उसको आपको करना है, राइट। माउंटेनस रीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आते हैं, राइट। लेट सपोज माउंटेनस रीजन है, आपको ये भी करना है। तो आप ये करिए कि कौन कौन से स्टेट से, जो अमेरिकन स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट से वो जो है बेसिकली माउंटेन गुजर रहे हैं, राइट, पास हो रहे हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है। इसके साथ में मिसिसिपी रिवर है, कोलोराडो रिवर है, ये रिवर जो है कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, या इस रिवर पर जो है कौन कौन से लेक्स भी पड़ते हैं, उसको आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको जो है नॉर्थ अमेरिका के लेक्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन क्या है अगर उसको अरेंज करना हो, या फिर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन उस लेक्स का क्या है उसको अरेंज करना हो। तो इस तरह से आप मैप उठाइए, फिजिकल मैप, ओके, वहां पर आप मार्क करिए और वहीं पर एक साइड में क्या कर लीजिए, सारी बातें लिख लीजिए। जैसे कौन कौन से लेक्स हैं जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर से होकर गुजरती हैं, राइट। कौन कौन सी रिवर गुजरती हैं, उसकी लेंथ क्या है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, उस पर कौन कौन से पोर्ट हैं। यही होता है कि एक आप पार्टिकुलर कंटिनेंट का ले लीजिए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट दिखे
पोर्ट्स हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर एक डायरेक्शन में आप वहां पर नोट कर लीजिए, उसी साइड में नोट कर लीजिए और उसको मार्क कर लीजिए। इसी तरह आपको पूरे वर्ल्ड का करना है इंक्लूडिंग इंडिया, राइट, और इंडिया पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एज यू ऑल नो कि इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, राइट, और सब पर जो है आपको फोकस करना जरूरी है, राइट, क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपको, जैसे मान लीजिए हमने गंगा रिवर सिस्टम को मार्क किया मैप में, अब उनके ट्रिब्यूटरी को तो मैंने वहीं पर मार्क कर लिया, राइट, कि कौन सी रिवर जो है ज्वाइन करती है ईस्ट से या फिर वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से, राइट, और कहाँ जाकर वो मिलती है, वहां पर आप मार्क कर लीजिए। जहां पर वो ट्रिब्यूटरी को मार्क है वहीं पर उसका ब्रेकेट में ओरिजिन जो है लिख लीजिए कि उसका जो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। उसके साथ में अगर वहां पर कोई टाउन है तो टाउन जरूर लिखिए, क्योंकि इस समय जो है यूपीएससी जनरली इस टाइप के पूछता है कि ये रिवर जो है किस किस शहर से होकर गुजरती है, तो आप वो टाउन लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए गंगा का लिखा या फिर सपोज यमुना का ही लिखा, तो यमुना आपने मैप में जो है लेट सपोज कि ये जो है गंगा आ रही है, ठीक है, यमुना मान लीजिए यहाँ से चली, राइट, लेट सपोज। अब इस पर जो है कौन कौन से टाउन पड़ते हैं, ऐसे 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 एक एक करके आपको लिख लेना है। यहाँ से मान लीजिए आपने यमुना किया कि यहाँ से निकली यमुना, ऊपर से आती है, लेट सपोज चेनाब कर लेते हैं, राइट, चेनाब कर लेते हैं, राइट, तो आप लिख लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन से डैम है बने हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो है कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, और यहीं पर ब्रैकेट में आप मार्क कर लीजिए कि ये रिवर जो है कहाँ से निकलती है, राइट। तो इस तरह से एक जर्नल मैं आपको बता रहा हूँ जो आप मैप में मार्क करेंगे, आप नेट का यूज करिए और वहां पर आप आसानी से मार्क कर लीजिए, यानी जितने भी फिजिकल फीचर्स उस पार्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड है उन सबको आप उसी के साइड में नोट करके चलेंगे। इस तरह आपको पूरा मैपिंग करनी है, राइट, उसको रिवाइज भी करना है, छोड़ना नहीं है। क्या क्या करना है, पोर्ट टाउन, लेक्स, जितने भी जो नेचुरल फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे, माउंटेन्स वगैरह कहाँ किस देश से गुजरता है, ईस्ट वेस्ट क्या है, नॉर्थ साउथ क्या है, एक्सटेंशन, ये सब कुछ आपको नोट करके चलना है, राइट। तो ये कर लेंगे तो आपका मैपिंग छूटेगा ही नहीं, राइट। अभी हो गई आपकी ज्योग्राफी की बात, फिजिकल एंड इंडियन आप क्लास 11 से पढ़ लेंगे, 12th में इकोनॉमिक ज्योग्राफी है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, आप उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं, पहली बात तो आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत, राइट, लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। देन उसके बाद में तब आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की पढ़नी है, एंड देन एक पॉलिटिकल थ्योरी बुक है वो भी आपको पढ़ना है, राइट। आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग में ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये काफी हेल्पफुल होगी, राइट। तो पॉलिटी के लिए आपको यही करना, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, बस। मैंने जो आपको बताया कि अगर आपके पास कम समय है तो मिनिमम 4 रीडिंग आपको करना ही करना है। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप मल्टीपल रीडिंग्स भी कर सकते हैं। जितना आप मल्टीपल रीडिंग करेंगे कुछ आप नई चीज सीखेंगे, कुछ नया चीज जो है दिमाग में आएगा, कुछ नए फैक्ट आएंगे दिमाग में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, राइट। फॉर द मेंस आल्सो आपको मेंस में अगर लिखना है तो विद एग्जांपल लिखना होगा, एंड दैट फैक्ट विल हेल्प यू इन द राइटिंग, राइट। सो आपको इस तरह से पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए आप जो यूट्यूब वीडियोज है उसको भी रिफर कर सकते हैं अगर आप जिस तरह चाहें, नहीं तो आप रमेश सिंह या फिर नितिन सिंघानिया कोई एक बुक रिफर करके पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 की भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, अगर नहीं टाइम है तो 12 की जरूर पढ़ लीजिए, राइट। तो इकोनॉमी के लिए इतना। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए कोई इस तरह स्टैंडर्ड सोर्स है नहीं जिससे आता है। आपको बेसिकली एक क्लास 11 की एक केमिस्ट्री की बुक आती है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की, जिसमें एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से आपको वो चैप्टर पढ़ना है। क्लास 12 में 4 चैप्टर आई थिंक 13, 14, 15 और 16 बायोलॉजी का, ये आपको पढ़ना है। ये इकोसिस्टम वगैरह के बारे में जानकारी दे देगा, और ये कुछ जो है वो मेटल्स वगैरह के क्या डिफेक्ट्स होते हैं उन सब के बारे में जानकारी दे देगा। इसके साथ ही आपको करंट अफेयर या जो न्यूज में रहते हैं एसोसिएटेड विद ज्योग्राफी वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका न्यूज़पेपर या फिर मंथली मैगजीन, व्हाटएवर यू वांट टू रिफर, राइट। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि एज यू ऑल नो कि इसका जो है वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेन फोकस आपको ये जो मैंने बताया 11th क्लास एंड 12th क्लास की बायोलॉजी, इसको पढ़ने के बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए कि स्पीसीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, बायोस्फीयर इन न्यूज, ओके, रिजर्व जितने भी कौन कौन न्यूज में है, ये आप सबको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एक डाइवर्सिफाइड टॉपिक है, राइट। आपको फोकस होना चाहिए, करंट अफेयर पर पकड़ होना चाहिए। तो मैंने आपको इसमें बताया कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बनाएं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप मल्टीपल रीडिंग करते हैं तो नोट बनाने की कोई जरूरी नहीं है, आप उसी में नोट बना लीजिए बुक्स के साइड में ही, ठीक है, समझने के लिए। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो देन यू कैन मेक नोट्स, राइट, बट समझ कर नोट्स बनाइएगा। इस पर मैं सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा, राइट। तो ये होगा आपका जीएस पेपर 1। लेट्स टॉक अबाउट current affairs also, right, because current affairs played an important role to clear prelim, sorry. So let us first talk about newspaper, as you all know, is the ultimate source for the covering current affair. So you can refer the Hindu or the Indian Express, right, दोनों में से कोई भी आप रेफर कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। आई थिंक द हिंदू जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है, तो आप अगर उसको ना रेफर करना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस रेफर कर लीजिए।
या फिर मंथली कंपाइलेशन जो मैगजीन्स आती हैं उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, या ईयरली कंपाइलेशन जो 365 आती हैं आप उसको भी कवर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना, रिवाइज करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज आई थिंक 150 पेजेस की जो ईयरली कंपाइलेशन होती हैं वो होती हैं 150 से 200 पेजेस की, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, फैक्ट्स आपको याद करना पड़ेगा, राइट। अगर आप रोज डेली इस जगह पर हैं जहाँ आपको ये सारी जो न्यूज़पेपर्स नहीं मिल रही है, देन आप ये सब ऑर्डर कर सकते हैं और एक्सेस ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इससे अच्छा खासा मैं कहूँगा करंट अफेयर में आपका हेल्प हो जाता है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द वेबसाइट्स। कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो डेली ब्लॉग डालती हैं, राइट, फॉर दी जो हिंदू न्यूज़पेपर है या इंडियन एक्सप्रेस है या फाइनेंशियल इकोनॉमिक टाइम्स है, इन सबसे जो है लेकर वो अपना जो है ब्लॉग डालती हैं जिसमें वो पूरा बैकग्राउंड समझाती हैं। तो यू कैन ऑल्सो रिफर वेबसाइट्स ऑल्सो फॉर दी कवरिंग करंट अफेयर। नाउ फॉर द आर्ट एंड कल्चर, आपके टाइम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका बेसिकली करंट अफेयर। बट आप क्लास 11 की फाइन आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, क्लास 11 की है, एनसीईआरटी है, ठीक। इसके साथ जब आप आर एस शर्मा पढ़ेंगे ना, तो आर एस शर्मा में कल्चरल एस्पेक्ट्स दिया हुआ है, राइट। तो कल्चरल एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखकर चलना है। ये समझ लीजिए कि मैं एंशियंट के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहा हूँ। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स या कल्चरल एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, एंशियंट इंडिया से टेम्पल से रिलेटेड दिए हुए हैं, स्तूपा से रिलेटेड दिए हुए हैं, इन सबसे रिलेटेड जो दिए हुए हैं, तो आप इसको वहीं से नोट डाउन कर लीजिए, राइट, जब आप एंशियंट हिस्ट्री आर एस शर्मा पढ़ेंगे। इसके साथ ही क्लास 11 की पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इससे प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। इसके साथ जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं ना, 11th या 12th की या जो भी, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट जरूर दिया रहता है। कोई भी आप बुक पढ़िए तो वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट जरूर दिया रहता है, तो उस पार्टिकुलर पर फोकस करिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई सेपरेट बुक्स या फिर सोर्स वैसे है नहीं, राइट। पहले कुछ थे, जैसे नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर था, बट क्या होता है कि उससे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, राइट। क्वेश्चन आ जाने के बाद वो बुक्स सारी अपडेटेड होती है, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा एडवांस में होकर चलना है। तो आर एस शर्मा पढ़िए, अभी कोई भी बुक पढ़िए, आइदर आर एस शर्मा या फिर उपेंद्र सिंह, कोई भी बुक पढ़िए, तो उसमें जो कल्चर एस्पेक्ट्स हैं जो दिए रहते हैं उसको जरूर फोकस करिए अगर आपको आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है तो, राइट। ये बेस्ट अप्रोच होता है, क्योंकि आपका एंशियंट के साथ आर्ट एंड कल्चर जो अलग सेक्शन नहीं है, वो एंशियंट या फिर मेडिवल जो आर्ट एंड कल्चर या फिर मॉडर्न का जो आर्ट एंड कल्चर वही है, बट आपको जो है उस पर फोकस ज्यादा करना होगा क्योंकि एक अलग सेक्शन आपकी यूपीएससी में दिया होगा, राइट। तो ये करंट अफेयर होगा और आर्ट एंड कल्चर होगा। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट। लेट्स, पीवाईक्यूज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, साथ में सोर्स के लिए। अगर आप इसका जो है पीवाईक्यूज का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाती है जो आपके काम आएगी कहाँ पर, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में सॉल्व करने के लिए। बस आपको एक काम करना है कि कम से कम 15 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है, बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। explanation is very important, you should not avoid the explanation of all the questions, right। आपको explanations पढ़ना ही पढ़ना है जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। बट आप सॉल्व कब करेंगे, जब आप 2 रीडिंग अपने सोर्स का कंप्लीट करके उसके बाद में तब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बिना देखे सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कितना लेवल हमारा बढ़ा है, या फिर वहीं से आप जान पाएंगे किस तरह हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, क्या राइट वे होना चाहिए पढ़ने के लिए और क्या हम सुधार कर सकते हैं। बिना कंप्लीट किए 1 या 2 रीडिंग आप पीवाईक्यूज को नहीं छुएंगे। पीवाईक्यूज को तभी सॉल्व करेंगे जब आपने 1-2 रीडिंग कर रखी हो, एटलीस्ट उस सब्जेक्ट के बारे में आपको एक ओवरव्यू पता हो, उसके बाद में ही पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का एक असली बेनिफिट होता है। उसके बाद में जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका लेवल कितना है, आपने इन्फॉर्मेशन कितनी कलेक्ट कर रखी है, वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, या हमको और एफर्ट लगाना पड़ेगा, या हम कुछ फैक्ट भूल रहे हैं, या हम सॉल्व करने के अप्रोच में गलती कर रहे हैं, या फिर हमारा वे सही नहीं है कि किस तरह से हम पढ़ते हैं। ये सब आपको पीवाईक्यूज ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसके साथ जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, तो आप रिपीटेड टॉपिक्स पर ध्यान दें, लेवल आप क्वेश्चंस पर ध्यान दें। इसके साथ ही चेंजिंग पैटर्न जो आजकल यूपीएससी हर साल चेंज कर रही है, आप इस पर बहुत ज्यादा फोकस तो नहीं कर सकते, बट आपको फोकस करना होगा जनरली कि किस तरह से जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, क्वेश्चन का लेवल पर ईयर्स किस तरह बढ़ रहा है, साथ में एक्सप्लेनेशंस आपको छोड़ना ही नहीं है। तो ये पीवाईक्यूज का तरीका किस तरह आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना, मैंने बताया कि जब आप लेट्स सपोज आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया 1-2 रीडिंग, उसके बाद में आप हिस्ट्री के आपने पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दी, या फिर ज्योग्राफी कर लिया या फिर इकोनॉमी कर लिया, जो भी आपको आसान लगे, कंफर्टेबल लगे, वो आप करके रीडिंग करके अच्छे से समझकर तब आप पीवाईक्यू अटेंड करिए। देन पीवाईक्यू आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, जब आप एक बार अटेंड करेंगे तो आपको समझ जाएंगे। देन अगेन अपने रीडिंग पर आ जाइए, ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। नाउ नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ सीसेट। ये 2023 प्रीलिम्स वाले बच्चों से पूछो कि सीसेट का पावर क्या है, तो बता देंगे कि सीसेट का पावर क्या है। बहुत से बच्चों ने जीएस पेपर 1 में 2023 के प्रीलिम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, राइट। हालांकि वो भी पेपर जो इजी नहीं था, डिफिकल्टी लेवल उसकी भी थी,
बट उसमें अच्छा परफॉर्म किया, उसका कट ऑफ लो जाएगा तो बच्चों को हो जाएगा। बट सीसेट में बहुत से बच्चे फेल हो गए। यस, बहुत से बच्चे सीसेट में फेल हो गए और सीसेट में फेल होने के कारण वो फिर क्या कर पाएंगे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, राइट। सो यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सीसेट। नाउ इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया, पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर द पीवाईक्यूज आपको हर एक चैप्टर का बेसिक्स तो मालूम होना चाहिए, राइट। जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेट्स से एज के बारे में, या फिर एवरेजेस के बारे में, परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, या फिर यूं कह लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, सॉरी, एलिगेशंस के बारे में, राइट। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डेली आते हैं। तो इस तरह का एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और फैक्ट है, राइट। अब इसमें दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जिनका मैथ बैकग्राउंड है, वो हर एक चैप्टर का उनको ओवरव्यू मालूम है। ओवरव्यू इन द सेंस कि उनको हर चैप्टर का थ्योरम पता है, इंपॉर्टेंट फार्मूले पते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता है। तो उनके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज में देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, किस तरह पूछा जा रहा है, कितना लेवल है उसकी डिफिकल्टी का। इस तरह आप जब एनालाइज कर लेंगे, देन आपको क्या करना है कि उस हिसाब से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है जितना आप कर पाएं, क्योंकि सीसेट को आप ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सॉरी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। इसके साथ में जो रिपीटेड थीम्स है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, रिपीटेड चैप्टर हैं। फॉर द एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो एवरेजेस से आते रहते हैं, एज प्रॉब्लम से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी तरह रीजनिंग के बता रहा हूँ कि रीजनिंग भी अगर आपका कमजोर है तो उस पर फोकस करिए, देन आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। तो ये आपका रहा मैथ बैकग्राउंड के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, जिनको एक ओवरव्यू कंसेप्ट हर चैप्टर का पता हो। देन वी विल कम टू नॉन मैथ बैकग्राउंड, राइट, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड में नहीं है। उनको सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन सारे टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, राइट, या उस बेसिस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और पीवाईक्यूज को तो जरूर सॉल्व करिएगा, राइट। तो ये रहा नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, जिससे हर ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। इस साल भी क्वेश्चन आया था, भले ही उसका पैटर्न जो थोड़ा चेंज था, तो आप उस पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स गिवन है यूपीएससी सिलेबस में, उन सबको ओवरव्यू लेना है। और इसके लिए तो सिंपल सा है कि किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए, किस तरह से आपकी रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही रीजनिंग एबिलिटी आपकी डेवलप होगी, मेंटल एबिलिटी आपकी डेवलप होगी, जो रीजनिंग में आपकी हेल्प करेगी। देन कंप्रेहेंशन में आते हैं, तो कंप्रेहेंशन में कुछ नहीं है भाई, कुछ पता नहीं होता। इस ईयर prelims 2023 में comprehension was very easy part, right? And maths and reasoning was the toughest part. So पहली बात आपको comprehension में PYQs को solve करना है, और इसमें आपको यही डेवलप करना है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारा करेक्ट हो, राइट। क्योंकि ये होता है कि उसमें सारे के सारे आपको आंसर सेम ही लगेंगे, सच ही लगेंगे, करेक्ट ही लगेंगे, उस ट्रैप में आपको नहीं पढ़ना। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारी अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि हमारा मोस्ट ऑफ द आंसर जो है वो करेक्ट हो। तो ये रहा कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स के लिए, जो मैंने बताई। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए तो जो प्रीलिम्स है वो क्लियर कर लेंगे और आपके लिए मेंस का रास्ता खुल जाएगा। मेंस के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी वैसे नहीं होती है, आपको आंसर राइटिंग पर फोकस करनी चाहिए, डिफरेंट आंसर राइटिंग्स करनी चाहिए, डिफरेंट टॉपिक पर ऐसे आपको लिखना चाहिए, राइट। और जो उसके कुछ अलग सिलेबस हैं जो प्रीलिम से हटके हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, राइट, इन सब पर आपको फोकस करना ही होगा, दैट इज डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो आपको प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप अगर करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी यूपीएससी से रिगार्डिंग डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ईमेल दिया हुआ वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल का कम्युनिटी में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जो है एक्सेस ले सकते हैं रिसोर्सेज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो उसी के बेसिस पर होते हैं, यूपीएससी के बेसिस पर, राइट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लगभग में 97% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर दो और चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, राइट। सो अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर आपकी हेल्प जरूर करूंगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।